Hello, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. In last lecture, we studied about the philosopher king. We studied about philosopher king, then we studied about Plato's conception of a philosopher, then the philosopher king, then there are some limitation of the philosopher king. After limitation, we started about the views on education. We just saw the introduction about the views of education, like education is important. If there is a proper education, then there will be a justice, right? We studied in the last lecture. Now we will continue with the educational theory. Plato's theory of education is intimately linked with his theory of justice in so far it is the positive or the spiritual method for the attainment of the same. Education plays a vital role in bringing about unity and harmony in the society. See, Plato's theory of education is ये किसे linked है? It is linked with the Plato's theory of education and the theory of justice. Both are linked with each other. Okay, and so education plays an important role in bringing unity and harmony in the society. See, if you ask me why education is important according to Plato, it can be like it is necessary for about bringing a unity and harmony in the society. अगर प्रॉपर एजुकेशन रहेगा तभी सोसाइटी में क्या रहेगी, देयर वुड बी हार्मोनी, देयर वुड बी प्रॉपर हार्मोनी एंड यूनिटी इन द सोसाइटी. इन द वर्ड्स ऑफ बार्कर, it is an attempt in to cure a mental malady by mental medicine. See, according to Barker, what he says, education is just an attempt to cure a mental malady by mental medicine. मतलब क्या, अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो आपका माइंड क्या रहेगा, पढ़ाई में ही रहेगा. और पढ़ाई करते रहोगे, नया नया सीखते रहोगे, नया नया सोचते रहोगे, तो बाकी सब चीज़ें हैं, उटपटांग चीज़ें वो मन में आएगी नहीं, राइट. बहुत लोग क्या करते हैं, मैनी पीपल इफ दे आर बोर्ड, और तो क्या करते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स. वाई बुक रीड करते हैं, यू गेट इन्वॉल्व इन द बुक्स. और अब जितना बुक में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो उतना आपका माइंड फ्रेश रहता है और गलत विचार मन में नहीं आते. सो education is an important. He believes that many evils of the society could be eliminated through proper education and considered it a spiritual remedy. The importance which Plato attached to education in his ideal state is evident from the fact that he devotes a good portion of the second book of Republic to this topic, and Rosas had to remark that Republic is the finest treatise on education that has ever been written. See, इसलिए क्या बोल रहे हैं, प्लेटो क्या करता है, एडुकेशन को इम्पोर्टेंट देता है और इसी बेसिस पे उसने सेकेंड बुक ऑफ रिपब्लिक लिखी, जिसमें उसने एडुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. और द फाइनेस्ट ट्रीटी ऑन एडुकेशन दैट हैज़ एवर बीन रिटन, इट इज़, उस बुक को ऐसे बोला गया है. लाइक उसने एडुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस बोला है, इतने फ़ायदे बोले हैं एडुकेशन के. प्लेटो बिलीव दैट Plato believed that virtue was knowledge and it was the duty of the state to impart that knowledge. See, what Plato believes, Plato believed that virtue was knowledge, right? अब जितना अच्छा पढ़ाई करोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा. एंड इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्पार्ट दैट नॉलेज. और प्रॉपर सबको एडुकेशन मिलना चाहिए, ये काम किसका है, ये सब चीज़ देखने का काम किसका है, इट वॉज द वर्क ऑफ एन स्टेट. ही हेल्ड दैट ऑल द 3 classes in the state must be properly trained and educated so that they may be able to perform their duties efficiently and properly. See, what he said, अभी ये एडुकेशन है, ये 3 क्लास जो बोले हैं, राइट, प्लेटो ने 3 क्लास बोले हैं. तीनों क्लास को अच्छे से मिलना चाहिए, प्रॉपर एडुकेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, तो ही हर कोई अपना काम अच्छे से कर सकता है, प्रॉपरली कर सकता है. इन अदर वर्ड्स, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ एडुकेशन. सी, इन अदर वर्ड्स, जो स्टेट है वो एडुकेशन को प्रमोशन करना चाहिए. अगर स्टेट एडुकेशन को प्रमोट करेगा
तभी हर कोई पढ़ पाएगा. एंड इफ everyone gets the proper education, he will get a proper training also, and everything would go on smoothly. तो proper justice वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको. Professor Barker brings out intimate relationship between justice and education. Thus, see, Professor Barker, what he tells there is a relation, there is a good relation between sorry, between justice and education. And thus he said that a system of common education will give that training for special work and that instinct for keeping selfless to its performance which justice demand. See, अगर एक बेसिक एडुकेशन और एक ट्रेनिंग एक अच्छा काम करने के लिए मिलता है तो क्या है, आप बिना किसी सेल्फिशनेस के अच्छे से काम करोगे, जिससे आपको अच्छा सा जस्टिस भी मिलेगा. हर चीज़ के लिए प्रॉपर जस्टिस भी मिलेगा. से ट्रेनिंग क्यों ज़रूरत है? से आप बड़े बड़े फैक्ट्री में वगैरह जाते हो तो क्या दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है पहले, राइट. अच्छा, आपने सीए की एग्ज़ाम पास कर रहे हो तो क्या आप डायरेक्ट बड़े कंपनी के चार्टर्ड अकाउंट बन जाओगे? क्या नहीं, वो लोग उससे पहले आपको क्या करवाते हैं, इंटर्नशिप कराते हैं, राइट. डॉक्टर बनने से पहले आप खुद का प्रैक्टिस करो, उससे पहले आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ती है. ये इंटर्नशिप क्या है? इट इज़ जस्ट यू लर्न स्मॉल थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल, जो बहुत बड़े आदमी है, लाइक जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे आप वो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ लो. उससे आपको आइडिया आएगा कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, राइट. आपका जॉब कितना आसान हो सकता है और कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, इन सब का आइडिया आपको पहले दिया जाता है. उसके बाद ही आपको फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हो आप, राइट. डॉक्टर बनने के लिए आप ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनोगे, 4 साल पढ़ लिया और डॉक्टर बन गए, नहीं. उसमें आपको एटलीस्ट 6 मंथ का कुछ तो इंटर्नशिप पीरियड रहता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है. देन यू कैन डू इट इन सम बिग हॉस्पिटल्स और एनी अदर हॉस्पिटल, वॉट एवर यू विश टू डू. ओके, आफ्टर दैट ओनली you can attempt the exam and and if you clear your exam then you can have your own clinic. अभी ट्रेनिंग क्या था, यहाँ पे जो इंटर्नशिप है इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ, यू कैन से इट्स फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो. अब बड़े कंपनी में जाते हैं, आपको क्या डायरेक्ट जॉब पे रख लेते क्या? नहीं. फर्स्ट व्हाट दे से, फर्स्ट यू विल हैव अ 3 months ट्रेनिंग पीरियड, राइट. 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड करो. 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद विल गिव यू अ प्रॉपर गुड जॉब, आपको आपकी सही पोस्ट मिल जाएगी. बोलते हैं ना ऐसे बड़े कंपनी में. सो दैट इज़ नथिंग बट अ बेसिक एजुकेशन सबको मिलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एडुकेशन हैज़ इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट. सी, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एडुकेशन क्या है? एडुकेशन हैज़ इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट. ऑन द वन हैंड इट मेक्स द इंडिविजुअल रियलाइज नॉलेज विच इज़ सिनोनिमस विद वर्चुअल. सी, एक हाथ में क्या रहता है, एडुकेशन अपने को इंडिविजुअल को नॉलेज मिलता है जो ज़रूरी है. इट एनेबल्स द इंडिविजुअल टू टर्न द आई ऑफ हिज सोल टू द इनवर्ड रियलिटी एंड ट्रूथ. सी व्हाट हैपेंड, इट एनेबल्स द इंडिविजुअल को क्या हेल्प मिलता है? टू जो सच्चाई है वो देखो, जो हकीकत है वो देखो. सी, just because of COVID, all the people suffered lot of loss. Like बड़ा आदमी क्यों हो, गरीब क्यों ना हो, हर किसी को नुकसान हुआ है. इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों का तक नुकसान हुआ है. जो बच्चे अभी प्ले ग्रुप में जाने चाहिए थे उनका 1 साल अभी वेस्ट हो गया. बॉर्न होते ही उनका 1 साल वेस्ट हो गया, राइट. बच्चों के एडमिशन्स के प्रॉब्लम हुए. अभी जो बच्चों आफ्टर 12th, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th, व्हेन यू आर सपोज टू टेक सम ग्रेजुएशन डिग्री, क्या हुआ? उनका 1 साल ऑलमोस्ट वेस्ट ही चला गया ग्रेजुएशन डिग्री के लिए. क्योंकि अभी जिन्होंने साइंस लिया था उनको, जिन्होंने जेई वगैरह, जेई की एग्ज़ाम कब हुई? फाइनली अगस्त में कुछ तो ही. सीईटी कब हुआ? अक्टूबर में वगैरह हुआ. उसका नवंबर में कुछ तो रिजल्ट आया. सीईटी भी बहुत लेट हुआ. सीईटी नहीं तो यूजुअली कब हो जाता है? मार्च में सीईटी हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीना डिले. एडमिशन्स, इंजीनियरिंग के एडमिशन, इंजीनियर डॉक्टर्स के एडमिशन अब कहाँ जाके हो चालू हुआ है हो एडमिशन सारे. अभी सेकेंड लिस्ट लगी है. सी कितना लॉस हुआ, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल. तो अगर आपका हर चीज़ का नॉलेज है, अभी
छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रहे हैं, दे आर सेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल. क्यों? आई नो ऑनलाइन उतना इफेक्टिव नहीं है, बट ऑल दोज टीचर्स आर ट्राइंग टू गिव द बेसिक नॉलेज टू किड्स. सो दिस नॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट. बोलते हैं ना, आपको जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपको रियलिटी, ट्रूथ सब पता चलता है हर चीज़ का. ऑन द अदर हैंड, it is a social process through which the units of society become instinct with social consciousness and learn to perform the duties of their respective stations unselfishly. See, एक तरफ क्या है, ये क्या है, सोसाइटी को यूनाइट भी करता है. अगर आप एडुकेटेड रहोगे तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी भी यूनाइटेड रहेगी. सोसाइटी में हर कोई कॉशियस रहेगा, नहीं, इफ़ आई बिहेव लाइक दिस इवन माई सोसाइटी विल बिहेव लाइक दिस, राइट. इससे सोसाइटी भी ख़राब हो सकती है मेरी. अब एक किसी सोसाइटी में चोरी हो गई तो अपन क्या बोलते, नहीं नहीं, उस सोसाइटी में एक बार बहुत बुरी तरह से चोरी हुई थी, उस सोसाइटी में मुझे घर नहीं लेना है बाबा, उस सोसाइटी में बहुत बुरी चोरी हुई थी. अभी अपन बोलते हैं अरे बानेर साइड वगैरह घर लेते, व्हाट विल से, नो नो यार, बानेर साइड सब बहुत एक्सपेंसिव जाता है घर, बानेर आउंद बानेर क्या है, बड़े लोगों की सोसाइटी है, नो बाबा, बहुत ही उधर हाँ हाई फाई स्टाइल वगैरह होगा, नहीं मेरे बजट में नहीं है, आई वोंट गो देयर. सो क्या है, इसका आपको नॉलेज रहता है और आप कॉन्शियस रहते हो ना, कि बाबा नहीं बाबा उस साइड में घर लूँगा तो मेरे को उस हिसाब से रहना पड़ेगा, एंड सॉरी इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लिव दैट वे. तो आप कॉन्शियस बन के रह जाते हो क्योंकि आपको नॉलेज है और आपको आपकी रियलिटी भी पता है कि मेरे इसके उतना, अगर मैं उन सब के उधर बानेर में जाके उतना खर्चा करूँ, उससे बेटर मैं यहाँ पे रह के सेविंग्स कर लूँ थोड़े, फॉर माई बेटरमेंट ऑफ माई फ्यूचर एंड माई फाई किड, राइट. सो क्या है, रियलिटी का भी पता चलता है और ट्रुथ का भी पता चलता है. प्लेटो मेक्स अ हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ दिस टू एस्पेक्ट ऑफ एडुकेशन इन दिस स्कीम. तो प्लेटो क्या करता है, एडुकेशन एंड जस्टिस दोनों को एक साथ लेके चल रहा है फिलहाल. मूविंग फॉरवर्ड, methods of Plato's education. At the time of Plato, two diametrical opposite methods of education were in vigor, the Athenians and Spartans. See, जब प्लेटो एडुकेशन इतना आगे बढ़ा रहा था तब एडुकेशन के दो फॉर्म थे और दोनों फॉर्म एक दूसरे के अगेंस्ट थे. दो फॉर्म क्या थे, एक तो एथेलियंस था और एक स्पार्टन था. The Athenian system of education was mainly in private hands and left it entirely to the parents to educate their children in the manner they liked best. See, अभी एथेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, ये प्राइवेट हैंड में था एंड इट वॉज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स टू एडुकेट योर चाइल्ड. मतलब जितना आप आपके बच्चों को पढ़ा सकते हो ना पेरेंट्स, आप खुद ही पढ़ा लो, लाइक हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले. इफ़ यू आर नॉट एडुकेटेड पेरेंट, then get educated and then make your child study. So this was the Athenian system. On the other hand, the Spartan system of education was fully controlled by the state. और जो स्पार्टन का सिस्टम था ऑफ एडुकेशन का, वो क्या था, इट वॉज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. मतलब सारा स्टेट के हाथ में था. द चिल्ड्रन वेर सेपरेटली फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट द एज ऑफ 4 and were placed under the care of prefects. See, children स्पार्टन सिस्टम में क्या था, स्टेट कंट्रोल कर रहा था और आपका बच्चा 4 साल का होते ही आपको उसको भेज देना है किसी के यहाँ पे, सो दैट ही गेट प्रॉपर एडुकेशन. जैसे अपन गुरुकुल सिस्टम बोलते हैं ना, द स्पार्टन्स हैड द सेम दैट गुरुकुल सिस्टम. द पेरेंट्स हैड नथिंग टू डू विद द एडुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन. सो पेरेंट्स को अपने बच्चों को एडुकेट करने के लिए कुछ नहीं करना था, बस वंस दे आर 4 years he or she has to go to the place where they placed under the care of prefects. The state provided education in harmony with the social condition. अभी सोशल कंडीशन क्या है, किसकी कैसे क्या है, उस हिसाब से स्टेट उनको एडुकेशन देता था. प्लेटो made an attempt to combine these two systems of education and made some changes in higher education. See what Plato did, he tried to make a combination of both the system, like the Athenian
एथेलियन सिस्टम एंड द स्पार्टन सिस्टम। एथेलियन में क्या है, इट वॉज कम्प्लीटली ऑन पेरेंट्स, एंड स्पार्टन सिस्टम में क्या था, पेरेंट्स को बच्चों के एडुकेशन का कुछ भी टेंशन नहीं लेना था। सो प्लेटो ट्राइड टू कंबाइन द both the education system, and even he made some changes in the higher education. His system of education aimed at promoting social welfare and helped the individuals in realizing the reality. See, his system of education क्या था, it aimed at promoting social welfare, like social welfare promote करना था, and help the individual to realizing the reality। और reality क्या है आप ये समझो, इसके ऊपर उसने ध्यान दिया था। Moving towards the next point, features of Platonic system of education. The main features of Platonic system of education were as follow. Firstly, Plato believed in state-controlled education. In view of the importance of education, Plato insisted that all concerned must be imparted proper education. See, Plato इस स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में बिलीव करता था, लाइक एजुकेशन स्टेट के पास होना चाहिए, इट शुड नॉट गो इन द प्राइवेट, राइट। प्लेटो इंसिस्टेड दैट ऑल कंसर्न मस्ट बी इम्पार्टेड प्रॉपर एजुकेशन, हर किसी को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। ही कंसिडर्ड एजुकेशन एज अ पॉजिटिव मीन्स बाय विच द रूलर could mold the character of the people and promote spirit of unselfish devotion towards their duties. See, education क्या है, it should go in the positive rule, so it should go in the positive way so that you could mold the character of the people. like लोग अगर गलत दिशा में भी जा रहे हैं तो आप उनको सही दिशा में लेके जा सकते हो, और हर कोई अपना ड्यूटी जो भी है प्रॉपरली कर सकता है। He therefore did not favor the idea of leaving education in private hand and insisted the state controlled education. इसलिए क्या किया, उसने बोला कि एजुकेशन प्राइवेट के हाथ में नहीं देना चाहिए और वो स्टेट के पास ही रहना चाहिए, ताकि हर किसी को अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे एंड एवरीवन कैन हैव अ गुड कैरेक्टर, हर किसी को सुधरने का मौका भी मिलेगा। सेकेंडली, प्लेटो डिड नॉट कंसिडर इट प्रॉपर to leave the education of children entirely to the discretion of the parents and instead on making it compulsion. अभी प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो did not consider to education entirely पेरेंट्स के पास नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ बट कंपल्शन ज़रूर करना चाहिए, लाइक हर किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए, कंपल्शन करना चाहिए। एज uneducated children were likely to be liable for the state. लाइक अगर आप एडुकेटेड नहीं रहोगे अच्छे से तो आप क्या रहोगे, आप स्टेट पे डिपेंड रहोगे कि अब स्टेट से मुझे ये सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा मिलनी चाहिए एंड ऑल। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल सिटीजन सो दैट दे मे फुल्ली डेवलप देयर मेंटल फैकल्टीज एंड बिकम वैल्यूएबल यूनिट ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट के पास ही एडुकेशन रहा और स्टेट ने सबको कंपल्सरी किया तो क्या होगा, हर कोई प्रॉपरली एडुकेशन लेगा और हर कोई प्रॉपरली एडुकेटेड रहेगा तो स्टेट को क्या मिलेगा, स्टेट को फ़ायदा मिलेगा, उसको वैल्यूएबल सिटीज़न मिलेंगे, हर कोई अच्छे से पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। थर्डली, प्लेटो डिड नॉट फेवर द एक्सक्लूशन ऑफ द वुमेन फ्रॉम हिज स्कीम ऑफ एडुकेशन ऑन द एथेलियन पैटर्न एंड वॉन्टेड दैट बोथ मैन एंड वुमेन शुड बी गिवन एडुकेशन। सी, प्लेटो क्या था, सी एथेलियन पैटर्न में क्या था, वुमेन की ज़्यादा एडुकेशन नहीं था, ओनली मैन हैड एडुकेशन, राइट। तो व्हाट प्लेटो डिड नॉट लाइक दिस, व्हाट प्लेटो वांटेड कि बाबा बोथ मैन एंड वुमेन बोथ शुड बी गिवन प्रॉपर एडुकेशन। प्लेटो डिड नॉट एंड एनी डिफरेंस बिटवीन द नेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड देयरफॉर फेवर्ड दैट बोथ शुड बी गिवन सिमिलर टाइप ऑफ एडुकेशन। सी, प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो डिड नॉट एंड एनी डिफरेंस बिटवीन नेटिव कैपेसिटीज बॉयज़ एंड गर्ल्स। प्लेटो बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई भेदभाव नहीं करता था, लाइक जितना एजुकेशन बॉय को ज़रूरी है उतना एजुकेशन गर्ल्स को भी ज़रूरी है, और जो बॉयज़ को एजुकेशन मिल रहा है वही एजुकेशन गर्ल्स को भी मिलना चाहिए। बोथ शुड बी गिवन सिमिलर टाइप ऑफ एजुकेशन। सो ही वॉज इन फेवर ऑफ वुमेन होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस लाइक मैन, क्योंकि वुमेन अच्छे से एडुकेट होगी तो क्या होगा, सब कुछ उसके फेवर में होगा, तो पब्लिक ऑफिस मैन के जैसे वुमेन भी होल्ड कर सकती है क्योंकि उनको भी प्रॉपर एडुकेशन मिल रहा है।
Fourthly, Plato's education was meant by artisans as well as peasant also. प्लेटो का एडुकेशन जो वर्किंग क्लास है, स्लीवरी क्लास है, उनको भी मिल रहा है, लाइक आर्टिसन, पीसेंट्स, उनको भी एडुकेट मिलना ज़रूरी है. Though Plato does not make a clear mention in this regard, but it is quite implied in his statement that men of copper can be made into men of silver and even of gold. See, उसने आर्टिसन पीसेंट्स को एडुकेशन देने के बारे में ऐसे बहुत ज़्यादा क्लियरली ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बट उसने एक सेंटेंस बोला है, मैन ऑफ कॉपर, लाइक आप कॉपर का कुछ बनाते हो तो यू कैन बी अ मैन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ऑल्सो. लाइक अगर आपको प्रॉपर एडुकेशन दे, ट्रेनिंग दे, तो आप भी सोना कमा सकते हो. तो इवन यू कैन अर्न अ गुड थिंग, इवन यू कैन अर्न अ बेटर इफ दे पोसेस द एट्रीब्यूट्स. अगर उनमें सच्चाई है, ईमानदारी है और कुछ आगे बढ़ना, अलग करने की चाह है, तो वो भी कर सकते हैं. However, Plato nowhere says for curtains whether his plan of education was meant for the peasants and artisans or not. But Plato ने ऐसे क्लियरली किधर भी मेंशन नहीं किया है उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आर्टिसन पीसेंट्स के लिए है या नहीं है. बट उसका जो सेंटेंस है, द मैन ऑफ कॉपर कैन बी अ मैन ऑफ गोल्ड और सिल्वर ऑल्सो, उस पर से वी आर जस्ट मेकिंग गेस कि बाबा प्लेटो उनको भी एडुकेशन देना चाहता था, बट उस पर उसने क्लियरली कोई बात नहीं की है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट प्लेटो वाज इन फेवर ऑफ strict censorship of all literacy and artist worker to ensure that the youth did not come under bad moral influence. See, प्रॉपर सबको लिटरेसी मिलनी चाहिए, प्रॉपर सबको बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर हर चीज़ का नॉलेज स्ट्रिक्टली वो बेसिक सबको मिलना चाहिए, ताकि कोई भी गलत राह पे ना चले, कोई भी गलत दिशा पे ना जाए. ही वॉन्टेड ओनली द राइट टाइप ऑफ लिटरेचर टू रीच द हैंड ऑफ यूथ. जो सही लिटरेचर है, लिटरेचर यानी जो पहले के लिखा हुआ है जैसे मैथ्स का वगैरह है. सी, मैथ्स में क्या है, बेसिक मैथ्स क्या है, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल, ये बेसिक चीज़ सबको मिलने आनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे. सो ही वॉन्टेड ओनली राइट टाइप ऑफ लिटरेचर टू रीच द हैंड ऑफ यूथ. जो लिटरेचर सही है, जैसे कुछ रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, थेरीज जो भी है, जो सही है, जो यूज़फुल है, वही यूथ तक पहुंचनी चाहिए. जो थोड़ा सा गलत है, डाउटफुल है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, that should not reach up to the youth. The ultimate judge of the tightness or otherwise of the literature was the ruler. See, जो अच्छा है, जिससे अपने को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिससे अपने को फ्यूचर में हेल्प हो सकती है, वही आप यूज़ करो. सी, तेलानी रामा के स्टोरीज़ आज भी अच्छे लगते हैं अपने को. सी, अकबर बिरबल के स्टोरीज़, even today we like to hear the stories of Akbar and Birbal. Why? Because everyone know Akbar was a very good king and Birbal was very intelligent and very smart guy, right? तो आज भी उनकी स्टोरी सुनने को अपने को अच्छा लगता है. Thus he sought to check every piece of literature which could have adverse moral effect on the children, insisted on clearance of the state before any piece of literature could be bought in the market. See हाउ इंटेलिजेंट प्लेटो वॉज. तो जो भी बुक पहले मार्केट में आ रही है, मार्केट में आपको लाना है, पहले प्लेटो वो देखता था, वो लिटरेचर पहले प्लेटो देखता था, पढ़ता था, समझता था. अगर उसका कुछ फ़ायदा है, अगर उससे कुछ बच्चों का अच्छा हो रहा है, अगर उससे किसी का भलाई हो रहा है, तब भी वो बुक मार्केट में आती थी, पब्लिश होती थी, सब होता था. इफ़ प्लेटो फेल्ट दैट कि बाबा कि नहीं, ये लिटरेचर अच्छा नहीं है, this should not be in the syllabus, it would create a wrong impact on the children mind, then that literature would be cancelled. मतलब उसने स्टेट से बात, word of mouth with the state, and he would cancel that. Sixthly, Plato's education aimed at moral as well as physical development of child. See, Plato क्या है, education फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, मॉरल के साथ साथ फिज़िकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. ही हेल्ड दैट अ हेल्दी माइंड वुड रिसाइड ओनली इन हेल्दी बॉडी
and it was essential that education should develop both these faculties. See what he did, he held that a healthy mind would reside only in healthy body. अगर आपका दिमाग हेल्दी है तभी आपका बॉडी भी हेल्दी रहेगा, राइट। अपन बोलते हैं ना, अगर आप अच्छा सोचो तो अच्छा कर पाओगे, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, राइट। अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा ही होना है, राइट। सो व्हाट ही डिड कि लाइक a healthy mind is as good as healthy body, and it is essential for education to look at both the aspect. Any scheme of education which promoted only one aspect was, according to Plato, was incomplete. See, ऐसा कोई भी एडुकेशन, नया स्कीम, नया थॉट जिससे सिर्फ आपके दिमाग को शांति मिले और बॉडी पे उसका कुछ असर ना हो, तो वो कुछ भी फायदेमंद नहीं है। It is of no use, it is an incomplete बोला गया है। Finally, the chief objective of Plato's scheme of education was to produce the philosopher king. See, एक ऑब्जेक्ट क्या था उसका, प्रॉपर एडुकेशन देने का ताकि एक अच्छा किंग मिल सके। The philosopher, after passing through a rigorous scheme of education, were expected to govern the country in the interest of the masses. अगर आप ये सारा एडुकेशन अच्छे से लो, सब कुछ लो, तो आप कंट्री कवर करने के बारे में सोच सकते हो, बट इट वुड डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द मासेस. सो हियर वी एंड अप द features of the Plato system of education. I think we should wind up our lecture here. In next lecture, we'll study about the curriculum of education as well as the criticism of Plato's scheme of education. Thank you. Till that time, read this chapter once again. If you have any doubt, mail me to me at rasikapagaria@aramedu.in. Thank you.